Harsha, thank you for joining us today. Are you able to hear me? Harsh, can you hear Yes, me? Anup ji, I'm able to hear you. Good evening to you. Okay, I hope good evening. I hope there is no lag. मतलब थोड़ा सा मुझे like हल्का सा स्पेस बीच में मिल रहा है आई थिंक बट वील नो व्हेन वी गो अप कि लैग है क्या आपके ये तरफ से मेरी तरफ से एनीवेज वी विल नो जब लोग आते हैं बट हाँ हाँ इट इज वी आर लाइव नाउ. So thank you for like being able to come here हम्म and just kind of to talk to me. Uh, I mean, before we go forward, I'll just briefly introduce you कि आपके बारे में. तो आई मेट यू इन बहराइच नवोदय विद्यालय बहराइच में बीएनए कैंपस में आप पढ़ाने के लिए गए थे हमारे बच्चों को एंड यू स्टेड देयर फॉर फ्यू डेज एंड दैट वाज वेरी जी नाइस टू बिल्कुल। मीट यू. और आपने अब तक करीबन आई थिंक 2500 या 3000 लोगों को मेंटर किया है उनकी लॉ की तैयारी में. और आप यहाँ क्लैट पाथ में ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं और पढ़ाते भी हैं लीगल को. तो आज हम जी कुछ बिल्कुल। लीगल एस्पेक्ट्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें अपने देश की अभी कंटेम्प्रेरी इशूज के ऊपर. इससे पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे बता पाएं कि क्या आपका अनुभव रहा जब बहाइश में आप बच्चों से मिले अपने कैंपस देखा और इन जनरल मतलब बीएनए या जवाहर नवोदय विद्यालय की जो व्यवस्था है सरकार की उसके बारे में आपको क्या लगता है, आपका कैसा रहा अनुभव? हम्म Anup ji, it's pleasure being with you at this platform. Um, I feel happy that I was provided with that opportunity. मैं काफी खुश हूँ ये बताते हुए आपको कि मुझे काफी अच्छा लगा उन बच्चों से मिलकर जो काफी मेहनत करने के बाद काफी कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बाद they were in that नवोदय विद्यालय कैंपस एंड एक्चुअली उनको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा बिकॉज द काइंड ऑफ शार्पनेस दे शोड जितनी जल्दी मतलब वो सीख रहे थे चीजों को जो उनका इंटरेस्ट लेवल था टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस. जब मैंने उनकी लॉ की बात की लीगल लीगल सेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उनसे. मैं 2 दिन तक था वहां पे. आई स्टार्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and I still remember how these kids responded to the question of reservation and I telling them कि reservation मतलब uh, किस तरीके से मतलब इम्पोर्टेंट भी है और एक तरीके से बिल्कुल हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए उस टॉपिक को. एंड उसके बाद जिस तरीके से बच्चों ने इंटरेक्ट किया द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच दे हैड क्लास से निकलने के बाद इट टुक मी लाइक 1.5 hours to reach to the guest room. So that is one of a kind of experience. I believe anybody who is working in education, some kids who really need guidance and who are willing to learn, Navodaya Vidyalaya is that place. Right, right. And So the campus was it was a beautiful campus away from the city. There were some issues with respect to the various provisions being made, but overall it was a good experience. very nice. I'm very happy to inform you like one of our students is watching us and Yes, he's Anup ji. writing for you that he's really missing you. He just commented Mayank. Uh, so on that note, I would like to kind of just mention that you have been one of the top rated faculty at BNA and our kids have really benefited from the experience they have had with you. Uh, sure, Mayank, you can get in touch whenever you need. There's another student of yours, Ravi Prakash Singh, who is also Thank you so much, GNU Anup ji. alumni, who is saying that he has had your classes at CLAT Possible. Okay, that's something I get these times and it is a lot of time because it happens when you are involved with when you are involved in answering the doubts of the kids with respect to when the pattern change of the learned test examination by the name of CLAT. There was like entirely up to 12 to 15 hours
there was a time when I was only answering to the text and to the calls, but I was still very happy because these kids were remembering me at that point of time, wanted to know what has changed, and uh, uh, other thing like that. So it's pleasure to be in touch with the kids. I really like when kids put in their hard work uh, to secure their dreams. Right, right. So I wanted to briefly mention you about the law that program that we have been doing. So Mayank, who was commenting, is part of that program. BNA recently started this Yes, program Anuji. for people who would want to prepare for law examination, which is CLAT and AILET. So what we did is we took a handful of people from across districts. We did a written exam, Mhm. and we chosen them. We took them through an interview process, एंड बाद में सब मिला के हमने 50 बच्चों को पिक किया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, हु आर नाउ रेजिडेंट्स ऑफ द ऑन अ बीएनए कैंपस, वो फुल टाइम रहते हैं 2 साल के लिए. और उस 2 साल में उनको क्लैट की तैयारी और क्लैट की तैयारी के साथ में अपना पर्सनल जो है ग्रोथ ग्रूमिंग करने का मौका मिलता है, बोलने का, क्रिटिकल थिंकिंग को सीखने का, और कैसे जब वो जाएंगे कैंपस पे तो वहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे उसके बारे में ट्रेनिंग मिलती है, और साथ में क्लैट की कोचिंग मिलती है. और इस प्रोग्राम को करने के बाद में वो क्लैट का एग्जाम अब की बार देंगे. तो ये जो हैं आपके स्टूडेंट्स वो पहला बैच का हिस्सा थे जो कि अब की बार 1 साल बाद एग्जाम देंगे. हम लोग आगे बढ़ेंगे. मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अभी जेएनवी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं कानून Mhm. की. तो आपके हिसाब से लॉ की पढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करें जिनको करना है? Mhm. हाँ, ओके। अनूप जी, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो आपका प्रोग्राम है, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है आज के समय पे। अ, उ एंड स्पेशली जो बच्चे जेएनवी में पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ होता क्या है कि इनके लिए आपने ये जो करियर गाइडेंस देने का रास्ता चुना है, ये काबिले तारीफ़ है। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा जब मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर अगर मैं बात करूँ कि मतलब हाउ हाउ दे मतलब किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं लॉ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि क्या उन्हें लॉ करना है। बिकॉज़ होता क्या है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, ठीक है? तीसरी जो उसके साथ अटैच चॉइस होती है कि क्या आप लॉ की भी पढ़ाई करेंगे। एंड फिर जो क्वेश्चन रेज़ किया जाता है कि जो हमारे मैं बिलॉन्ग करता हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो जो उत्तर प्रदेश का रीजन है यहाँ पे मतलब एक चीज होती है कि कानून की पढ़ाई मतलब क्या आप कोर्ट कचहरी करोगे, अब ये बाकी रह गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा मतलब कोई अगर दूसरे टाइप का एक कमेंट मिलता है, अरे अब ये तो सही है, कुछ केसेस हो तो देख लेना, ठीक है। ये दो टाइप की कमेंट मिलता है। जहां तक रही बात जेएनवी में पढ़ने वाले बच्चों की एंड लॉ एज ए कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने की, सो इनके लिए क्या है कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एवेन्यू। बहुत मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, अ, वो अगर हम लोग देखें जस्टिस सिस्टम में तो क्लियरली एक निग्लेक्टेड वे में रहता है। इसको इसी को बचाए जाने के लिए ये पीआईएल जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा रही है। हर चीज के लिए अब पीआईएल की जरूरत पड़ गई है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए आपको अब जुडिशरी का रास्ता देखना पड़ता है। मतलब आते हुए और फिर बात ये है कि विद गोइंग टू द फिफ्टी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जज बन सकते हैं,
दूसरी चीज़ ये है कि आप एडवोकेसी कर सकते हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं। आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों को जस्टिस दिलाने में जो सही में न्याय पाना चाहते हैं। और अगर आप लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप प्रो बोनो मतलब फ्री में अगर इन लोगों की हेल्प कर पाएँ, जिस कम्युनिटी को आप बिलॉन्ग करते हैं, जिनको आप रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, वो हम सबको एज़ अ कम्युनिटी करना चाहिए। एंड लॉ एज़ अ फ़ीवर्स यू दैट काइंड ऑफ ऑप्शन राइट। कि आप उनकी मदद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है। अ, थोड़ा-सा मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर्ष सर कि हमारे एक साथी हैं प्रीतम जी बता रहे हैं कि नेटवर्क स्लो है हो रहा है आपकी तरफ। अनूप जी, इस चीज़ से ना ये भी आपसे था कि ये आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? मतलब वेयर डिड दिस आइडिया एंटायरली स्टार्ट फ्रॉम? लाइक जहाँ तक मैं समझ पाया इसका पूरा जो एम था वो था स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सो ये स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए और उसमें फिर जेएनवी की बात की जाए और फिर इस पूरे अभियान की बात की जाए, तो कहाँ तक ये चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं? राइट, राइट। मैं जवाब दूँगा इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा-सा जो है हल्का-सा नेट का प्रॉब्लम शायद आपकी तरफ हो रहा है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। हमारे साथी कह रहे थे कि आपकी तरफ जो नेट है थोड़ा-सा मतलब वीक सा आ रहा है। तो प्रयास करिएगा अगर कुछ और आपके यहाँ ऑन है तो आप जी, ऑफ कर दीजिए एंड देन आवाज़ विल आ रही ट्राई है टू आपको? कंटिन्यू ऑफ कोर्स। थोड़ा-सा स्लो हो रहा है आपकी तरफ से। हाँ, हाँ, मैं आपकी अ आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ हर्ष सर। uh, we can continue. यस, I यस, can actually वी विल। also see the comments. हुँ। Um, so we can continue. But they can be a small bit of lagging, but that is of minute seconds as far as I can या see. विल मैनेज ऑफ कोर्स। तो रही बात आपके सवाल की तो ये बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग है। आप बता रहे थे किस तरीके से पूरा इंटरसेक्शन है। राइट, राइट, राइट। हम लोगों ने शायद जब कैंपस पे तो हमने बात भी किया इस बारे में जब गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे थोड़ा बहुत कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं कहूँ एकेडमिकली जो मैं जो जो ऑन पेपर या फिर जो हम लोग सच में बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ में वो ये है कि हम हाँ, नवोदय विद्यालय ने हमेशा अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को दिया है। हमारे पास एनफ नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं, एनफ नंबर्स ऑफ जुडिशरी पीपल हैं, सब लोग हैं। लेकिन जो एक जनरल टेंडेंसी रही है अपने रूरल एरियाज में फ्यूचर चूज करने की वो हमेशा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ रही है। आज भी किसी मध्यम वर्गीय या फिर निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में अगर आप कहें तो ये चूज करना कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा बहुत डिफिकल्ट होता है। हम हर जगह पर प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए साइंसेस पढ़िए। तो मेरा कहीं ना कहीं हमेशा रुझान रहा है कि ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स और लॉ इन चीजों पर फोकस किया जाए। दैट वाज नंबर वन। Number two, I was watching this live session by this, I think one of the members of NLSU Bangalore, who said how this law discipline also is a liberal arts discipline, which is really interesting remark. You know, if the university is teaching law from that perspective, it's great. हम्म, But real reason, underlying reason why we started this program and not something else is because करीबन 2 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे बहराइच जिला में। और वहां पे एक बहुत ही पास के हम्म, संबंधी थे मेरे, लाइक साथी थे जो कि निम्न जाति से आते थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके खिलाफ जो लड़ाई कर रहे थे वो 3 हम्म, टर्म से इनकम्बेंट थे और एक मतलब एक बड़ी पार्टी से समर्थित थे और वो हमेशा जीतते थे। तो इन्होंने लड़ाई किया, बहुत डिफिकल्ट था इनके लिए लड़ाई करना जो निम्न जी, वर्गीय थे। हम लोगों ने सपोर्ट किया उनके लिए, मनी जो है थोड़ा बहुत कैंपेनिंग के लिए रेज किया पब्लिक से और उनको हेल्प किया लड़ने में और जीत गए। तो जो बड़ा जो है जाति का आदमी था जिसको जो हमेशा जीतता था उसे मतलब basically ये बात हजम नहीं हुई। He was not able to digest the fact that not only this person had the courage to stand up for the elections against this high caste person, but also managed to win the elections
coming from a very like backward caste. So what happened is after like 7 days, the goons of this person took him under a pulia and killed him. So it's been like 2.5 and 2 years, but nuances of that are still inside me, and I was completely broke to know about the incident, because I was one of the people who inspired this person to fight the elections. So आई वाज लाइक कि जिन जिन जगहों पर फ्यूडल स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग है हमारे इंडिया में, जैसे उत्तर प्रदेश में से एक जगह है, वहां वहां पर जरूरी है कि हम ग्रास रूट से ऐसे वकील बनाएं जिनको समहाउ ये पता रहेगा, मतलब कि जो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों की वॉइस बनेंगे जिनको आवाज नहीं मिलती है. क्योंकि जब मैंने प्रयास किया कि मैं इस केस को वापस लेके जाऊं, जुडिशरी में फाइल करूं केस, तो मेरी कोई बोलने के लिए नहीं तैयार था कि मेरे साथ में कोई बोलेगा, गवाही कोई देगा. तो और उस स्तर पर कोई वकील नहीं तैयार था जो इस केस के लिए लड़े. तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हमें कुछ एक नई जो है पौध तैयार करनी है लीडरशिप की. ऐसे कुछ वकील, ऐसे कुछ लीडर जिनका मोरल स्टैंड बहुत हाई हो और वो किसी भी हद तक जाकर जो गरीब लोग हैं उनके अधिकार के लिए बात कर पाए. तो इसीलिए इन 50 लोगों को चुना गया है, और ऐसे हर बैचेस में ऐसे आएंगे जो कि बहुत ही अपराइट, ऑनेस्ट, मोरली स्ट्रांग, एलिवेटेड लोग रहेंगे. और सपना है कि ये जो है अगले जनरेशन को लीड करेंगे हर एक कैपेसिटी में. And my point is not to just make them lawyers, but also let them become, like join politics, join legislation, join media, join judiciary, all the important pillars that democracy has. They should join them, and they should kind of, assume powerful positions to be able to bring out true justice and fairness to the common people of the country. So I think that was the point of starting this program. And I just wanted to add one more thing. The current leadership in the Samiti, the government which is running the Navodaya schools, is very cooperative. They are very, very kind of positive about these kind of things. I have had the pleasure of working with these government officers closely, and they have been always very responsive about these things, and that's why it's very easy for us to run this program. And just to aid that, we are not charging any money to any of our scholars, fully funded, and the money is coming from alumni community. हमारी alumni community है नवोदय की, वो लोग हम लोग करते हैं raise money, and we're not taking money from government or the participant of the program. I think मैं अब अगले सवाल पर आऊंगा. I think let's talk more about the different things, because I think you have been very much active in the coaching industry. So just tell me about the current change that was announced by the consortium on 21st November. What is it now? Is it completely changed in your view? What is changed in the syllabus? Okay, Anup ji, there came an announcement in the month of January 2020. The CLAT consortium tried to make certain changes to the exam. When we are talking about law entry examination, I must say we are talking about CLAT, Common Law Admission Test. In the Common Law Admission Test, what the CLAT consortium did, it wanted the students community to get into the habit of reading and assimilating information out of a passage. This the consortium decided कि जो पैटर्न होगा क्लैट का वो ऐसा रखा जाएगा कि पूरा पेपर पैसेज बेस्ड हो जाए. ठीक है. इससे क्या होगा कि जो बच्चों की रीडिंग कैपेसिटी है वो बिल्ड की जा सकती है. इसलिए क्या हुआ कि पेपर में जो अभी तक क्लैट कंसोर्टियम ने 3 सैंपल पेपर रिलीज किए हैं. ये तीनों सैंपल पेपर एविडेंस इस तरफ एविडेंस दे रहे हैं कि इस तरह एविडेंस हमें दे रहे हैं कि हम किस तरीके से पेपर को अप्रोच कर सकते हैं, मतलब क्या क्या हमें पढ़ना होगा. क्लैट कंसोर्टियम ने, आई जस्ट वांट टू टेल द किड्स कि क्लैट कंसोर्टियम ने इसके लिए अपना एक यूट्यूब चैनल भी रिलीज किया है क्लैट कंसोर्टियम का. इसके अलावा क्लैट कंसोर्टियम इज आल्सो वर्किंग, like you said, they are delivering lectures also. So ओवरऑल अगर देखा जाए तो पैटर्न में ज्यादा बदलाव अगर देखा जाए तो लीगल सेक्शन की अगर बात करें तो पहले क्या होता था, सवाल आते थे प्रिंसिपल बेस, मतलब एक रूल ऑफ लॉ गिवन होता था, उस रूल ऑफ लॉ को एक फैक्चुअल होता था
उसके बाद कुछ ऑप्शंस होते थे, उस पे से हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था। तो ये चीजें होती हैं। इसके अलावा अब जो पैटर्न है इसमें क्या है, पूरा पैसेज, उस पैसेज के बाद उससे रिलेटेड उससे ही मतलब उस टॉपिक से ही रिलेटेड आपसे नीचे सवाल पूछे गए हैं। सपोज करते हुए सवाल पूछे गए हैं कि मतलब अगर ये सिचुएशन होगी तो हम लोग किस तरीके से उस सिचुएशन में आंसर निकालेंगे, मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब पेपर मोर ऑफ अ जेनरिक हो गया है मेरे हिसाब से। टॉपिक्स जो हैं वो कम नहीं हुए हैं, बढ़ गए हैं। और when somebody is preparing at this point of time, so they must be reading the legal passages, like they should follow the websites like Bar and Bench. They should follow the website like Live Law. They should also be reading the opinions which are mentioned in the it will facilitate their preparation. And that is how Right. rest Right. So it's great to see some of the students of yours are watching it. Some of the students from PNA, Dev and Amit and Mayank, they're watching you. What is your quick advice to them while they're at home now with weak internet and no study materials, away from school, away from BNA facilities? What are your suggestions for them to kind of just keep doing to be able to be on that preparation path? ओके। सो व्हाट दे कैन एक्चुअली डू इज कि अभी तक जो इनके पास कंटेंट मटेरियल था उसे ये लोग रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या कर सकते हैं कि जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द किड्स आर फ्रॉम, मतलब ज्यादातर लोग विलेज एरिया को बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से आते हैं। तो वहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब बच्चे इंटरनेट सोर्सेज का यूज करें। सो कंटेंट प्री प्रोवाइडेड है, उस पर ध्यान दें। जो बुक्स हैं इनके पास, इनके कोर्स की स्टडी मटेरियल की, अगर ये उसे अभी फिनिश कर लेंगे तो इनके पास ज्यादा टाइम आ जाएगा। अ, इनके पास ज्यादा टाइम आ जाएगा कि ये बाद में किस तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे क्लैट की, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। सो अभी इनके पास बेस्ट समय ये है कि ये जो इनके पास बुक्स अवेलेबल हैं ये उनको फिनिश करें, उनको रिवाइज करें और इस समय का मैक्सिमम Right. यूटिलाइजेशन करें। I think before we go, I would like to take a question from our audiences. A lot of questions are there, but I would just go with one that is pertaining to you. Can you read the comment from Rocky, her sir? So Rocky has written a lot. So I participated in Oxford Prize Media Moot. So Oxford Prize Media Moot basically focused around the year which I participated. So it focused around a domain of free speech and expression. What you can do is once you go to your national law university, you get an opportunity to be a part, and this starts from the very first year. When you start from the your batch wise, first a moot happens, then there is intra moot, then there is national moot, and then there is international moot. And in most of the colleges, what happens is on the basis of the intra moot, ranks निकलती हैं, and उस basis पे you apply for different moots. And then the moot court committee decides कि आपको कौन सा moot allot होगा, and then they participate करते हैं। एक moot proposition होती है, उसको लेकर वो लोग आगे चलते हैं। Your voice is not coming. Are you done? Like, are you okay? Yes. Yeah, okay. So just tell us a little bit about, let's come on the contemporary issue. And I think what happened yesterday, that 10 incident that all of us are talking about on Facebook and in social media. I think let's quickly get on that, because that have really that have been hurting me personally, and of course all of us.
the lockdown, the coronavirus, all of that was maybe inevitable, but the train accident that happened maybe could have been like managed without. So could you please set a light from your side? What could have been done? What went wrong? So I personally believe the decision of the government was considerably right, but it was not implemented in a right manner. Likewise, they started with the Janta curfew on 22nd of March, post which what happens is they brought lockdown one, lockdown in particular manner. What happens is uh, I was saying कि पहले लॉकडाउन वन आया, फिर लॉकडाउन टू आया, देन लॉकडाउन थ्री आया। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों में चेंजेस किए गए। जब बाद में ये सब आता रहा तो इसके बाद दे स्टार्टेड mentioning about how to get back these migrant people to their original state. So यहाँ पे ये दिक्कत आई कि the way they managed all these things. दूसरी चीज क्या हुई कि I'm happy that they brought an ordinance ensuring that the healthcare workers are not attacked in the manner in which they were. But कुछ laxity रही, which we government governance in India कि किस तरीके से ये लोग इस समय ब्लेम गेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग देख रहे हैं कि ब्लेम गेम में चल रहा है तो डिफरेंट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट मैनर। एक स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, that way. And with respect to the guidelines they mentioned about the lockdown, each state government is after this lockdown, uh, each state government is bringing out its own kind of notes and notification. So in that manner, I believe ki uh, this could have been done better, a better implementation on the part of the government. Right, right. I mean, anything else you want to say on that migrant movement issue? Because this have been in the news from the day one we started, from the day of Janta curfew, when PM suddenly came on screen, said that we are going to be closed down for 21 days. People were kind of started moving, and then जब बंद हो गया तो फिर अपने अपने cities से लोग शुरू कर दिए चलना पैदल, और कहाँ कहाँ से अहमदाबाद, बॉम्बे से यूपी और बिहार आना शुरू कर दिए. Uh, what do you think could have been done on that, or could be done on that? Because I have been seeing the rich people being kind of given the services of airplane. So how do you see it from the inequality point of view, and what approach could have been taken? Please. So Anup ji, on this, my personal view is that ki यहाँ पे अगेन द ब्लेम गेम देयर। जिस तरीके से द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग इन ब्रिंगिंग आउट द पीपल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दोस पीपल हु आर कमिंग बैक टू इंडिया आर बीइंग प्रोवाइडेड, उसका 10% भी दे आर नॉट प्रोवाइडिंग टू द पीपल who were there in India, they were in other states. So ये प्रॉब्लम है, द इनइक्वालिटी यहाँ पे दिखती है हमें, but when it comes down to these people who were in India and they were working here. So आपने उनको ध्यान पे नहीं रखा, आपने उनकी बेहतरी के बारे में नहीं सोचा, आपने तुरंत आपने आराम से एक लॉकडाउन घोषित किया जनता कर्फ्यू के बाद, और टाइम भी नहीं दिया इस क्लास को अपने नेटिव स्टेट तक जाने का। Right, right. Can you take this question on the screen now, Harsh sir? The question is from Dhruv Sumbli. Can I pursue ITI after ALB degree? I don't know if he meant IIT or ITI. Hi, Dhruv is a batchmate of mine. Hi, Dhruv. Uh, Okay.
Got it, got it. I think we'll go to Dhruv, another question because I hope. Yeah. just one second. I'm finding a question for you, which is relevant to us. Can we take this thing, because I had this in mind. The alcohol sale and the liquor shop opening have just happened, and we have all seen the pictures of long queues in media, and we have been thinking about this. I have my own view, but I'm sure you have your own, and you have been in touch with the current affairs and the facts and figures. Maybe you could comment on this one. और थोड़ा सा मैं चाहूंगा, मैं भी अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, हिंदी में बात करें। बहुत बार मेरे कुलदीप साथी ने कहा है कि हिंदी में बात करें हम लोग, तो मैं भी ध्यान रखूंगा और आप भी ध्यान रखें, हम लोग हिंदी में बात थोड़ी सी कर लेंगे। थैंक यू कुलदीप रिमाइंड कराने के लिए। हर्ष सर बताइए। Manish, Manish is also a batchmate of mine. Hi, Manish. Uh, with respect to this online sale of liquor, uh, this has already been said by the Supreme Court, that the Supreme Court has asked state, मतलब उसने state से बोला है कि आप consider करिए online delivery को। कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी, एंड उसमें बोला गया था कि 70,000 वेंडर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 5 करोड़ के आसपास लोग वहां इकट्ठा हुए। पिटीशन में बोला गया था कि जो पिटीशन है पब्लिक इंटरेस्ट में डाली गई है। मैं जहां तक मानता हूँ, आई एम राइट नाउ इन बिहार। बिहार इज अ ड्राई, सो एज सच इसका यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं देखा गया। सो बाकी जगहों पे जो मैंने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, उसमें यही देखा कि ये जो भीड़ थी ये लगी हुई थी, एंड दे वर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। सो वो सबको फॉलो अप करनी चाहिए। दिल्ली में कुछ जगह बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पर पुलिस को बाद में उन शॉप्स को बंद भी कराना पड़ा। एंड देन अगले दिन, सो दैट दिस लार्ज क्यू एंड दिस लॉट ऑफ लोगों ने एक साथ इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया लिकर्स को। सो इसको रिलेटेड देन देयर केम अ न्यूज दैट द दिल्ली गवर्नमेंट इम्पोज 70% सेस। सो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट का भी एक इम्पेरेटिव था कि इससे क्या होगा, शायद कुछ लोग जो इतनी ज्यादा मात्रा में लेके जा रहे हैं लिकर्स को, वो शायद कम होगा। और दूसरी चीज की अगर बात की जाए तो इतनी भीड़ भी जो है वो नहीं लगेगी। होता क्या है न्यूज में, और बहुत सारी ऐसी जगह भी हम लोगों ने देखी जहां पे लोगों ने क्यू अप होकर दूर दूर तक लाइन लग गई थी, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक, जहां पर लोगों ने लाइन पे खड़े होकर रहकर इंतजार किया। तो गवर्नमेंट का यही कहना था कि शॉप्स खुली रहेंगी के नॉर्म्स। सो जब ये पिटीशन आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट दे हैव आस्क्ड द स्टेट्स टू कंसीडर कि डिलीवरी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो लोग एंटरप्रेन्योर वेंचर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक नया डोमेन शायद पूरी हद तक। ठीक है। I think I pretty much agree with what you said. I would come to this comment from Bablu sir. Bablu Kumar is from Bangalore. He's from I think from Army, Air Force. I think he's asking, what do you think about the current labor regulations, whether they're effective in terms of social security, and current situation of migrant pertains to continuous weakening of social security. I think I had this question about how are we going to secure the livelihood of our people, majorly people who are working in the gig economy, informal sector, like housemates and people who are unregistered laborers of daily wage. What are we going to do about that? And also, if you can mix this question with what WG is asking about the labor law regulations in terms of social security. तो व्हाट हैपेंड इज, अनूप जी, अब इसी बीच में ये जो राइट टू वेजेस का इशू है ये पूरी तरीके से निकल कर आया। देयर वर लॉट ऑफ आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू वेजेस प्रॉब्लम्स,
सो हुआ क्या कि अब जहां तक 29 मार्च को एक ऑर्डर आया था बाय बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें बोला गया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए कि जो वेजेस हैं वो टाइम पे दी जाएं, ठीक है, किसी को नौकरी से न निकाला जाए। इसके पहले लेबर मिनिस्ट्री का एक लेटर आया था 20 तारीख को, 20 मार्च को, जिसमें उसने सेम चीजें बोली थी दैट वी मस्ट इंश्योर दैट पीपल आर नॉट फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। सो ये अपनी तरह चल रहा है। और फिर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई ऑल्सो सॉ फ्यू वीडियोस जिसमें ये बोला, एम्प्लॉयर्स ने बोला कि इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। इन दिस वीडियो these two employers said we are ready to go to jail but we will not be able to provide services, we will not be able to provide the wages to the laborers. So अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। तो अगेन व्हाट आई बिलीव इज कि ये जो इकोनॉमिक पैकेज आने वाला है गवर्नमेंट का, बहुत समय से ये न्यूज पे चल रहा है कि इकोनॉमिक पैकेज आएगा, इकोनॉमिक पैकेज आएगा। ये जल्दी से जल्दी आना चाहिए। एमएसएमई सेगमेंट में जरूरत है। बात की जाए तो इन इंडस्ट्रीज को जरूरत है सब्सिडी की, रिबेट की, जिसके थ्रू ये हो पाएगा कि ये जो जब एम्प्लॉयर रह पाएगा तभी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा। एज सिंपल एज दैट। सो हमें राइट, ये सारी राइट। चीजें देखने की भी जरूरत है। और जहां तक रही बात माइग्रेंट माइग्रेंट तो ये जो अभी इंसिडेंट हुआ आपके महाराष्ट्र में, ट्रेन ट्रेन मतलब जिसे इन लोगों ने एक्सीडेंट का नाम दिया, 16 लोगों की मौत हुई। वो काफी दुखद थी। और उसके बाद न्यूज आई कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। बट अगेन ऐसा नहीं है कि लॉस एंड रेगुलेशंस है नहीं। इंटर स्टेट माइग्रेंट को लेकर ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1974 है। बट वो कहाँ हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो क्वेश्चन मार्क है। uh, अगर हम बात करें जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी रेगुलेशन है जो इसके ऊपर बात करती है कि किस तरीके से ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके इनके इनको ध्यान में रखना चाहिए और इनके इश्यूज को हमें समझना चाहिए और इनकी माइग्रेंट वर्कर्स को बिल्कुल एकदम से इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। और बेसिकली वी शुड रिस्पेक्ट देयर ह्यूमन राइट्स। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1975 का ये आईएलओ रेगुलेशन है जिसके बारे में बात करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है विल ऑफ द गवर्नमेंट। एवरीथिंग बीइंग लेफ्ट ऑन द सिविल सोसाइटी। Our honorable PM asked us to look after our employees. He asked us to look after our neighbors. He asked us to look after the people जो हमारे यहाँ काम करते हैं। He asked us to look after everyone rather. So a lot of people have been asking this question, if we all are whom it is looking after. So I got it. Yeah. that is the end. Yeah. I think I'll go with the next question. मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने बात किया, एक सज्जन है हमारे साथी हैं, मतलब नेटवर्क में हैं, जिन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी इस बारे में कि पीएम केयर फंड का क्या उपयोग किया जा रहा है और जब नेशनल रिलीफ फंड था तो पीएम केयर बनाने की जरूरत क्या थी, और अगर बनाया भी गया है तो हम इतने करोड़ रुपीस, मल्टी करोड़ रुपीस ऑलरेडी आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट ने दिए हैं, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने सैलरी काट के दिए हैं उस फंड में, तो गवर्नमेंट उसे क्यों नहीं पब्लिक कर रही है उसके एक्सपेंसेस को, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ही गलत है कि नहीं है। और हमारे साथी हैं विपिन दिवाकर जी, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कमेंट में, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर पाए तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से आउटराइटली गलत है और इसे हर हाल में जो है पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि ये मनी पब्लिक का है और पब्लिक के लिए आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक जान पाए कि कितना प्रोपोर्शन कहाँ खर्च हुआ। फिर भी थोड़ा सा मैं लीगल फ्रेमवर्क स्टैंड पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा। Okay, Anup ji, I completely agree on you that
I was trying to a few days back. I was trying to search about this PM relief fund. So हुआ क्या कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ तो एवरीबडी गॉट इनटू द सेगमेंट की एक होड़ सी मच गई थी. इनफैक्ट आई वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, टू से द लीस्ट. Post which later on I realized that I'm getting no I'm getting no information on this, that किसका पैसा है, किसने कितना दिया. अगेन हो सकता है कि ये ना बताना चाहती हो सरकार, बट अगेन लेकिन इसका एक दूसरा एक एस्पेक्ट है कि एटलीस्ट ये जो पब्लिक मनी है, ठीक है, ये आप बताइए कि आप इसका एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं. दिस इज अ क्वेश्चन इज आल्सो इन माय माइंड कि वी आर नॉट एज अ सिटीजन वी आर नॉट एबल टू असर्टेन कि जो पैसा इतना सारा आया ये गया कहाँ पे. क्वेश्चन यहाँ तक रेज हो रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसा दे दिया केयर फंड में, ठीक है. इसके बाद उनने अपने एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दिया हुआ है पिछले 2-3 महीने का. मतलब पीपल वर इन दैट होल कि मतलब पीएम केयर फंड में पैसा देना है, बट एम्प्लॉयज को जो पैसे थे वो रुके हुए हैं. एंड दैट इज वेयर आई बिलीव द क्वेश्चन, दैट इज वेयर आई द entire issue lies. In this event of sending money to the PM cares fund, these people stop thinking about that they can use that money for the welfare of their employees. So I believe कि अगर इसका more transparent manner पे this works, like they should make, जैसे हर चीज की एक ऐप और एक वेबसाइट इन लोगों ने बना दी है. मोदी ऐप थी, मोदी के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, मतलब जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ द पीएम, ठीक है. चाहिए था जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, इस टाइप से ही होती पीएम केयर वाली, बताती कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो ऐसे हेल्पफुल नेचर के हैं और वो हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है. सो शायद इससे लोगों को और बेहतरी होती है समझने में कि किससे मदद मांगनी है. एंड ऑफ कोर्स अगेन ऑन द पॉइंट ऑफ रिपीटिशन कि किस तरीके से ये जो फंड है, ये जो यूसेज है, ये शायद हम लोगों को जानने का हक है. एंड आई बिलीव कि ड्यू टू द सिविल सोसाइटी, ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम सिविल सोसाइटी होगा क्या कि दे विल बी बाउंड टू रिलीज दैट पर्टिकुलर डेटा while to come. Right. That's interesting. That's a great comment from your side. थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंसेस को कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं. हम आपके सवालों पे आएंगे. थोड़ा सा 2-3 चीजें बची हैं जो मैं चाहता हूँ पूछ लूँ. उसके बाद में बहुत सवाल हैं आप लोगों के, तो हम लोग आपके सवालों को भी लेंगे. थोड़ा सा आई वाज थिंकिंग about the Vizag gas case that happened in this time. If you could make a remark on that, Mr. Tiwari. So अनूप जी, एक बहुत ही रीसेंट न्यूज है. एंड अगेन यहाँ पर ये जो है पूरी इट्स साउथ कोरियन कंपनी एलजी पॉलीमर, जिसकी ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट थी ये विशाखापट्टनम, एज ऑल्सो नोन एज वाइजैग. यहाँ पे ड्यू टू आई विल से ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन देयर पार्ट, this gas leaked, and it has an implication. It killed people. The fumes were dangerous to the human life. NGT, National Green Tribunal, ने क्या किया कि इस पूरे मैटर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दिया है. लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का. मैं इसमें ज्यादा डिवॉल्व नहीं हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा वाइजैग गैस लीक का इशू, दे शुड बी टेकन इन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का. स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या होता है, डिफेंस नहीं बचता सामने वाले के पास. एंड दे शुड हैव आइडियली फॉलोड the concept of absolute liability as was laid down in MC Mehta versus Union of India. So मेरा यही मानना है कि इस कॉन्सेप्ट, अगर ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की कैटेगरी में लिया जाए और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के एस्पेक्ट को समझा जाए,
तब जाकर शायद इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है मेजर लेवल पे। और हम इस एलजी पॉलीमर को काफी हद तक देन हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है कि इस कंपनी के पास अभी भी डिफेंस रहता है। ये बोल सकती है कि एक्सीडेंट हुआ था, या बोल सकती है एक्ट ऑफ गॉड हुआ था, या एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी था, मतलब किसी और ने किया होगा ऐसा रिलीज के लिए। सो वहां पे क्या होगा, इसकी लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इसकी लाइबिलिटी जो होगी शिफ्ट हो जाएगी। सो मैं मानता हूं कि इस पूरे इंसिडेंट को एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना चाहिए। मिस्टर बिपिन आस्किंग इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है एंड हाउ दिस गोइंग टू अफेक्ट बिजनेस ऑनर्स। सो अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी की, तो ये हम सब समझ पा रहे हैं। मोस्ट अभी जो रिलीज हुए डेटा, इसके हिसाब से पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, पहली फॉरमोस्ट चीज। दूसरी चीज, कैपिटल नहीं है, एक बिजनेस ओनर्स के पास कैपिटल नहीं है। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज अलाउड थी, सो वो बिजनेस रन कर रहा था। इंडस्ट्रीज बंद थी, सप्लाई चेन क्या करती, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे थे। हम लोगों ने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी कार की सेल नहीं हुई किसी मंथ पे। इसके अलावा अगर बात की जाए अ, बाकी चीजों के भी, तो सब लगभग चीजें बंद थी। तो इससे क्या हो रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, जनरेट नहीं हो रहा। पैसा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उनको उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक चक्कर है। अ, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो बेसिकली सफर कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर, गवर्नमेंट का कोई एक्शन प्लान है नहीं अभी तक उनको लेकर। सो जब पैसा नहीं होगा जो बिजनेस ओनर्स हैं, तो ये आगे कैसे किसी को दे पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये पूरी तरीके से ओवरऑल इम्पैक्ट करेगी एक बड़े लेवल पे इकोनॉमी को। राइट राइट राइट। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ और इसी बहाने अपने दर्शकों के साथ भी बताना चाहता हूँ उन लोगों को भी कि सबसे बड़ी समस्या जो अभी हमें मतलब भारत नवोदय अभियान को आ रही है वो ये है कि हमारे जो तमाम तरह के फेलोशिप रेसिपिएंट्स हैं, स्कॉलरशिप रेसिपिएंट्स हैं, या बीएनए स्कॉलर्स हैं जो कि लॉ की तैयारी कर रहे हैं, वो सब अभी अपने अपने घरों में हैं, चूंकि स्कूल्स बंद हो गए हैं, कॉलेज बंद हो गए हैं, और मैक्सिमम वो गांव है जहां पर इंटरनेट या तो मजबूत नहीं है या तो फिर नहीं है, और चूंकि वो भी माइनर्स हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। तो एजुकेशन जिस तरह से अफेक्ट हुआ पूरी कंट्री में, वो सब हम जानते हैं। हम अलग अलग क्षेत्र से जो भी लोग हैं एजुकेशन से सब जानते हैं कि क्या क्या इश्यूज हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं उसके बारे में हम लोग बात करें कि क्या इसका इफेक्ट होगा और कैसे इसको डील किया जाए। एमएचआरडी जो कि मेन प्राइम इंस्टीट्यूशन है कंट्री में, जो कि एजुकेशन को देखती है, संभालती है, मैनेज करती है, उसका क्या रुख रहा है इसके तरफ, अगर थोड़ा सा जो आपका रहा हो व्यू मुझे बता पाए आप। So I'm happy with what the MHRD ministry could do during this time. इस पूरे समय पे MHRD ministry took a leadership position, एंड उसने ये पूरी तरीके से इंश्योर किया है कि जिनके पास अगर रिसोर्सेज हैं कि वो ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो उसने काफी चीजें प्रोवाइड कर दी। एक ऐप आई स्वयं, चैनल लॉन्च किया स्वयं प्रभा, दीक्षा आया, मतलब दे हैव लॉन्च लॉट ऑफ इनिशिएटिव फॉर दैट मैटर। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन पूरा एक सेगमेंट इन लोगों ने बना दिया है, जहां पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। MHRD मिनिस्ट्री इज इंटरेक्टिंग विद किड्स। बट यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनकी इनकी डेट्स को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि लाइक पीपल आर स्टिल रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क कि किस तरीके से हम लोग इसको मतलब तैयारी करें, कब तक तैयारी करें, किस डेट में पेपर होगा। सो यहाँ पर दैट इज द प्रॉब्लम विच आई कैन सी कि they should have done more, they should have done more. ओके ओके। स्कूल्स को बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर्स। यस। अब स्कूल्स होंगे क्वारंटीन सेंटर, तो बच्चे अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो कहाँ जाएंगे? बट आई थिंक दिस वाज अ काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मूव, जब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ समाज में। सो आई मीन आई थिंक दैट हैव बीन थॉट
जिससे कि किसी ने भी मतलब ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किया, मतलब व्हाट एवर गवर्नमेंट हैव बीन ट्राइंग टू, सबने काफी कोऑपरेट किया. And frankly speaking, when it started, I was very, very amazed to see the kind of response government had, because it was very proactive and quick. इससे पहले जब से मैं आया हूँ धरती पे, मैंने देखा कि मतलब गवर्नमेंट रिएक्ट करती प्रोएक्टिवली. बट एट द टाइम वेंट ऑन, आई वाज सीइंग द काइंड ऑफ measures they were supposed to be taken from the government, they could not be taken. And I have been seeing a lot of my non-profit workers, my NGO friends, been working really hard on ground to kind of provide basic essentials to the people who were losing out and being hit by the lockdown. So I think the kind of role NGOs have played, and there's data about it. There's data on Google about it. You can just search it. But I think I really want to appreciate everybody working on ground, from the non-profit community, from the NGO community, from the civil society community, from the political fronts, people who have been really working on ground to make sure that everybody is being fed equally, people are being given hygiene kit. So that is something to be really acknowledged, and I really acknowledge that. There's a friend of mine from Hamari Mitti NGO. The NGO started at IIT Bombay. They have been doing great work. I want to just say, just kind of pat them, because really good work they're doing. Sir, we were supposed to be here till 8, and this is going to be 8 p.m. But still, if you have some end remarks, something you want to ask something to one of our audiences on me, you could do that, and then you feel free to leave if you have some other work, and I'll continue with my audiences. Anup ji, I would just like to say that it will be great for everyone to go through the legal issues जो चल रहे हैं इस समय. Already suggested two sources. One can read the articles from Bar and Bench, a website, or Live Law for that matter. And by doing so, they will be in a position where they can understand what is going on in the Indian legal space. With respect to the CLAT aspirant, the kids whom I just taught in the school while I was there at Navodaya Vidyalaya, I would start preparing for, जब तक घर में है उनके पास resources नहीं है, तब तक वो एग्जाम्स की जो अपने स्कूल की बुक्स हैं उनको कंप्लीट करें. इसके बाद once this is over and the normal situation comes in, then only क्या होगा कि they can utilize this time to the maximum extent. Where it comes down to the question on the ability with respect to Swayam Prabha, Swayam Prabha is not as good. So what happens is the government is still trying to bring in more content onto their portals. हमें ये भी समझना चाहिए, this is the first time for the government also that this kind of situation has arisen. So they're trying their level best. But हम लोगों को भी बस मतलब अभी के लिए बस ये टाइम यूटिलाइज करना है. इसके बाद once the situation becomes normal, then we can continue with our life as it was to be. Anup sir, it was a pleasure talking to you, and it was a pleasure talking to you, and hopefully we will have another session someday. And absolutely, good luck with your work as an NGO. Good luck with ensuring kids get all kind of content and classes, so that they can secure good ranks in CLAT and other law entrance examination. Thank you so much. I think this was really fruitful for me and all of my audiences to talk to you and listen to your point of views. बहुत अच्छा रहा कि हम लोग बात कर पाए आज, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये हो पाया. मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पेपर पे या कहीं ना कहीं आती हैं, लेकिन हम सब जो बहुत लोग होते हैं जो कि अपने अपने रीजन की वजह से नहीं पढ़ पाते उन चीज़ों को, तो उन सब लोगों के लिए ये सोच था, और आगे आता रहेगा. इस तरह के लोगों से मिलते रहेंगे इसी पेज पर, जिससे कि हम सब लोग समझ पाए कि असल में चल क्या रहा है देश में.
और हमारा उसमें क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग फ्रिक्वेंट तरीके से ऐसे चीजें करते रहेंगे समय टाइम पर। तो थैंक यू सो मच हर्ष सर, मेरी तरफ से भी और हम बीएनए की फैमिली की तरफ से भी। हम दोबारा बात करेंगे और होप ये सब जल्दी ठीक हो जाए, जो भी देश में चीजें और ग्लोबली चीजें खराब हो रही हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ गुड नाइट। सेम टू यू। गुड नाइट।